خیابان بخاری پر ٹک ٹاکر کے زخمی ہونے کا معاملہ۔ پولیس کے مطابق ٹک ٹاکر کو ٹارگٹ کیا گیا اور نہ ہی براہ راست گولی لگی۔ نامعلوم کار سواروں نے سڑک پر فائر کیے تھے۔ ایک پتھر اڑ کر سمیر کو لگا جس سے وہ معمولی زخمی ہوا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ تفصیلات لے لیتے ہیں کامران منہاس سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ رات خیابان بخاری ڈیفنس فیز 6 درخشاں تھانے کی حدود میں جو ہے واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ٹک ٹاکر سمیر جو ہے زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے اسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اس وقت جو ہے درخشاں تھانے میں ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے، یہاں کے ایس ایچ او سے بھی بات ہوئی ہے۔ ان کا بتانا یہ ہے کہ یہ جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا، کچھ اوباش نوجوان تھے، ان کی جانب سے سڑک پر جو ہے کچھ فائر کیے گئے تھے اور گولی جو ہے ٹک ٹاکر کو براہ راست نہیں لگی۔ سڑک سے پتھر جو ہے اڑ کر جو ہے ٹک ٹاکر کو لگا تھا، جس سے وہ معمولی زخمی ہو گیا تھا اور اس کو علاج کے بعد گھر روانہ کر دیا گیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک جو ہے سمیر جو ہے قانونی کارروائی کے لیے جو ہے تھانے نہیں آیا۔ اگر وہ آتا ہے تو اس کی مدعیت میں جو ہے مزید قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، لیکن پولیس جو ہے اپنے طور پہ جو ہے تحقیقات کر رہی ہے۔ اس علاقے کے قریب کی جو ہے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان نوجوانوں کی جو ہے شناخت حاصل کر کے ان کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے، اور جیسے ہی ان کی شناخت ہوگی تو فوری طور پر جو ہے ان کی گرفتاری کے لیے جو ہے پولیس جو ہے کوشش کرے گی۔ جی، شہر قائد میں آگ لگنے کے 2 مختلف واقعات۔ رنچھوڑ لائن کی بلڈنگ میں واقع گودام میں آتش زدگی۔ آگ پر فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں کی مدد سے قابو پا لیا گیا۔ لیاقت آباد ایف سی ایریا میں 5 منزلہ عمارت کی دوسری منزل پر بھی آگ لگی۔ فائر بریگیڈ کی 1 گاڑی کی مدد سے آگ بجھا دی گئی۔ آگ لگنے کے واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی چیمبر کا بجلی اور شرح سود میں کمی کا مطالبہ۔ کراچی چیمبر کے سینئر نائب صدر ضیاء رحمان کہتے ہیں کہ حکومت کاروبار آسان بنانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ انڈسٹری کے لیے بجلی کا ریٹ فوری طور پر 9 سینٹس فی یونٹ کیا جائے۔ مہنگائی کم ہوئی ہے تو شرح سود کو بھی سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ دیکھا جائے ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبریں آنا شروع، مہنگائی کی رفتار کم ہوئی ہے، ساتھ ہی دیکھا جائے شرح سود بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا کنسرن اس وقت انڈسٹری کا ہے کہ جو بجلی کے ریٹ ہیں، ساتھ ہی گیس کے ریٹ ہیں، وہ کم نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، یہاں جانتے ہیں۔ کراچی چیمبر کے نو منتخب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں، معاشی عدد و شمار بہتر آ رہے ہیں، کیا اور کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، معاشیات کی رپورٹ تو آ گئی ہے، مگر ایکچولی اگر آپ ریئلٹی پہ جائیں تو چیزیں جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہیں، پرائسز کم نہیں ہو رہے ہیں، اور بزنس جو کرنے کا سلسلہ ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس پہ بہت ضروری ہے حکومت کو دیکھنا، کیونکہ جب آپ انڈسٹری لگاتے ہیں تو اس کی بیسک ضروریات ہوتی ہیں نا، انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ انڈسٹری کی ضرورت کیا ہے؟ گیس، پانی، بجلی۔ اگر یہ چیزیں مہیا ہوں گی اور گورنمنٹ اس چیز پہ توجہ دے گی تو آپ کا ایک ایکسپورٹر جو ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کی ایکچولی وہ ریونیو بڑھائے گا، اور جب ایک ریونیو بڑھاتا ہے تو وہ ڈالر کی شیپ میں آپ کے پاس ایک ریونیو آتا ہے، ایک فورن ایکسچینج آتا ہے۔ کراچی شہر 54% ایکسپورٹ دیتا ہے، 60% فیڈرل ٹیکسنگ دیتا ہے۔ آپ کراچی شہر کے حالات دیکھیں، نہ آپ کے پاس سڑکیں چلنے کے لیے، نہ انڈسٹریز میں پانی ہے، نہ بجلی کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں بجلی کے ریٹ جو اتنے بڑھا دیے انہوں نے، آپ کیسے سسٹین کریں گے مارکیٹ میں؟ اب آپ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بجلی کے پرائسز کو وہ 9 سینٹس پہ کریں، تاکہ ہمارے جو ہے مارکیٹ کے اندر ہم کمپٹیٹو ہو جائیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپٹیشن اتنا ہے کہ ہمیں سسٹین ہونے کے لیے یہ ریٹس پہ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، شرح سود ہمیشہ اگر آپ کامیاب بزنس چاہتے ہیں اس کو سنگل ڈیجٹس میں رہنا چاہیے۔ آپ نے ڈبل ڈیجٹس میں رکھا ہوا ہے، ڈبل ڈیجٹس تو میرے خیال سے یہ انڈسٹریز کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے، اور میں یہی کہوں گا کہ اس چیز کو آگے مانیٹری پالیسی میں یہ مزید کم کرتے جائیں تاکہ لوگ اپنی بزنس کو بڑھائیں۔ اگر یہ بڑھا کے رکھیں گے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پہ نو منتخب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر کے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر، جیسے کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمت 9 سینٹ لائی جائے، ساتھ ہی شرح سود دیکھا گیا ہے کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے تو جو شرح سود ہے اس میں بھی بڑی کمی کی جائے۔ جی، اسٹاک مارکیٹ کے قائم مقام چیف ایگزیکٹو ندیم نقوی کہتے ہیں کہ مارکیٹ حالیہ تیزی کے باوجود 2002 کے لیول تک ہی پہنچ پائی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں ابھی بہت گنجائش موجود ہے۔ طویل المدتی سرمایہ کاری کر کے ڈالر اور سونے سے زیادہ منافع ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے ایاز رانا سے۔
जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त कायम मकाम एमडी के हैं, सीईओ नदीम नकवी साहब मौजूद हैं। ज़रा उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त हालिया दिनों में मार्केट में एक सर्च देखें, एक बड़ी बढ़ावट नज़र आ रही है। पूछते हैं क्या हालात हैं, कितनी कंपनीज इनके होते हुए इस वक्त लिस्टेड हो चुकी हैं सर। बड़ा सहरा जाता है आपको, हालांकि आप कायम मकाम हैं। क्या देख रहे हैं मार्केट का इस वक्त फ्यूचर? देखिए, मार्केट का तो एक अपना ही जहन होता है, मैं तो सिर्फ एक केयर टेकर हूँ। मगर ओवरऑल मार्केट इसलिए भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट बहुत लो थी। आज भी अगर आप देखें तो इस वक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो, जो एक मेजर है कि मार्केट कितनी इसकी वैल्यूएशन है, वो 2022 के लेवल पे अब पहुंची है। यानी इतनी सर्च के बाद हम वहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हमने तो ये क्रॉस ही नहीं किया है। अगर हमारे हालात इम्प्रूव करते चले गए, जैसे मैं इंशाल्लाह उम्मीद कर रहा हूँ, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रही, तो मार्केट इसी तरह बढ़ती रहेगी। लोग ये कहते हैं भाई ये आप 60,000 से 80 पे पहुँच गए हैं, अब 85 पे पहुँच गए, कितना जा सकती है? तो ये ज़रा सा एक इसमें लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस तरह ना देखें। इस तरह देखें कि मार्केट की वैल्यूएशन क्या है, कि उसके अंदर जो कंपनीज़ हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, किस तरह से जा रही। और आप एक चीज़ देखेंगे कि मार्केट के अंदर एक चेंज आ रहा है। पहले जो था, एक तरह की कंपनीज थी जिसमें सीमेंट वाले थे, कंस्ट्रक्शन वाले थे। अब एक चेंज आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल आपको एक अंदाज़ा हो कि हमारी गवर्नमेंट है अब फोकस कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है एनर्जी की कॉस्ट कम करने के लिए। तो ये सेक्टर्स जो हैं, जैसे कि आज बुर्ज मुदारबा, कैपिटल मुदारबा लिस्ट हुआ है, ये क्लीन एनर्जी के लोगों को इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि अब अगली 5 साल जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके अंदर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, अल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर, इसमें जो कंपनियां आए उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी। तफसीलन हमसे बात कर रहे हैं नदीम नकवी, जो कायम मकाम इस वक्त फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं सीईओ के स्टॉक मार्केट के लिए। और ख़ासकर इनका कहना है कि इस वक्त मार्केट में पोटेंशियल बहुत मौजूद है। 2022 के रेट जितनी हम इस वक्त तेज़ी से रिकॉर्ड देख रहे हैं मार्केट बना रही है, वो इस वक्त तक इसकी जो कीमतें हैं, प्राइस ऑफ अर्निंग हम जिसको कहते हैं, वो 2022 तक पे अभी पहुँची है। अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश बाकी है। शॉर्ट टर्म नहीं, इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश बहुत मौजूद है। और इसके अंदर जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो सरमायाकार हैं, वो इंट्राडे नहीं बल्कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो यकीनन एक अच्छा मुनाफा हासिल किया जा सकता है। जी, आईजी सिंध और पुलिस अस्पताल इंतजामिया का अहसन इक़दाम। पुलिस एहलकारों और फैमिली के लिए एक रोज़ा मुफ्त भी कैंप लगा दिया गया। सैकड़ों अफराद के मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं। अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और पुलिस अस्पताल के एमएस डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी की हिदायत पर पुलिस एहलकार और उनकी फैमिली के लिए एक रोज़ा फ्री कैंप लगाया गया है, जहां पर मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जा रहे हैं और उनका चेकअप भी किया जा रहा है, जबकि तमाम अद्वियात भी उनको मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तो हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार और उनकी फैमिली यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँची हुई है, जो कि यहाँ पर अपना चेकअप करा रहे हैं और मुफ्त जो है वो इलाज करा रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ ये मौजूद हैं डॉक्टर वर्दा आसिफ कुरैशी साहिबा। उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगी। मैडम, आप बताइएगा कि क्या कहेंगी इस हवाले से? आज का कैंप लगाया गया है आईजी साहब की हिदायत पे, इंतजामिया की हिदायत पे, कितने पेशेंट आ रहे हैं और कौन कौन से अमराज में मुब्तला होकर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज जो पुलिस अस्पताल में ये कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया गया है आईजी साहब के थ्रू, और एमएस साहब और हमारे जो डीएमएस साहब हैं डॉक्टर आमिर, और एमएस साहब डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी के अंडर हुआ है। और हम लोग यूजुअली वैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी ओपीडी में, डेली जो पेशेंट्स देखते हैं उसमें आमतौर पे, क्योंकि पुलिस वाले अपनी ड्यूटीज़ पे होते हैं या नाइट्स कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास फॉलोअप्स इतना अच्छा नहीं करा पाते, अपनी हेल्थ को इतना कॉन्शियसली नहीं चेक में रख पाते। तो इसलिए ये स्पेशल कैंप का आज जो इनकाद हुआ है वो ऐसे ही पेशेंट्स के लिए ज़्यादा है कि वो अपना टाइम निकाल के अपना और अपनी फैमिलीज़ का यहाँ पे चेकअप प्रॉपर करा सकें। स्पेशली जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो यहाँ पे फॉलोअप कराएं, आके अपनी दवाएं भी लें। 2 वीक्स की या इवन 1 मंथ की भी दवा यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है आज, और डॉक्टर्स बैठे हुए हमारे वो प्रॉपर चेकअप कर रहे हैं और उसी के हिसाब से पेशेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप है हमारे पुलिस वालों की हेल्थ के लिए और उनके लिए उनकी वेलफेयर के लिए। तो आगे भी इंशाल्लाह ऐसे और मज़ीद कैंप्स मुनक़िद किए जाएंगे पुलिस अस्पताल के अंदर ही और आईजी साहब के अंदर। तो होपफुली ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्दा, जिनका कहना था कि पुलिस एहलकार और उनकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा इकदाम है, जहां पर आईजी सिंध और वज़ीर सेहत और अस्पताल के इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे एक रोज़ा मुफ्त कैंप लगाया गया है, जहाँ पर शुगर टेस्ट और दीगर मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जा रहे हैं, जबकि इनको तमाम तर अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। तो एक बहुत अच्छा इकदाम है कि यहाँ पर पुलिस एहलकारों और उनकी फैमिली को तमाम तर सहूलियात
मुफ्त फराहम करने का सिलसिला जारी है। जी आइए अपने आप से मोहब्बत करें, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें, मस्बत सोच अपनाएं और जहनी तनाव जैसे अवामिल से दूर रहें। आज जहनी सेहत का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हर 3 में से 1 शख्स डिप्रेशन का शिकार है। दिन मनाने का मकसद आलमी सतह पर जहनी सेहत की अहमियत और दिमागी रवैयों से मुतालिक आगाही बेदार करना है। फरहान खान की रिपोर्ट। जरूरी सोचो विचार से बचें और मुस्कुराते रहें। दिमागी सेहत के आलमी दिन पर इस पैगाम को आम करें। पाकिस्तान में दिमागी सेहत के खदशात खतरनाक हद तक फैल रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 4 करोड़ 45 लाख से ज्यादा अफराद जहनी अमराज का शिकार हैं, जिनमें डिप्रेशन, परेशानी और शेज़ोफ्रेनिया सबसे ज्यादा आम है। वज़ीर सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जहनी अमराज में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। मुल्क में 8 करोड़ अफराद नफ्सियाती मसाइल के शिकार हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंस डॉक्टर बतूल फातिमा ने बताया कि लोगों में जहनी सेहत के मसाइल की लाशऊरी मर्ज के बढ़ने की अहम वजह है, जबकि पाकिस्तान में माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स की किल्लत भी एक चैलेंज बनी हुई है। हर 4 या 3 में से 1 फर्द को डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बड़े कॉमन है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कोई और जहनी मर्ज है और जिसके लिए इलाज की ज़रूरत है। देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जो जहनी सेहत फराहम करने वाले जो मुआलिज हैं, जिन्हें हम साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है। पूरे पाकिस्तान में हार्डली 400 साइकियाट्रिस्ट हैं और उससे भी कम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहली बात ये कि हमारे पास इतने लोग ही नहीं हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। एसोसिएट प्रोफेसर और चेयर शोबा नफ्सियात डॉक्टर नरगिस असद ने कहा कि हर उम्र का फर्द दिमागी अमराज का शिकार है। मुतासरा फर्द की पहचान जिंदगी में बदलते हुए रवैयों से लगाई जा सकती है कि इस दौर में हर कोई परेशानी का शिकार है, किसी ना किसी तरीके से कोई जहनी तनाव, जहनी परेशानी, जहनी बीमारी है। जैसे ही आप एक शख्स की एक जिसको हम कहते हैं कि एक अमूमन या एक बेसलाइन फंक्शनिंग में तब्दीली आप देखते हैं, तो वो एक अलामत होती है, रेड फ्लैग होता है कि हम उसको और गौर से देखें कि ये किस तरफ या किस डायरेक्शन में इसकी फंक्शनिंग जा रही है। माहिर दिमागी अमराज के मुताबिक सोचना, बेहतर नींद लेना, वर्जिश करना और खुद को तरजीह देना दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियों की शरह को कम कर सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपने उरूज पर है, जहां मुख्तलिफ ममालिक के फनकार एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। 14वें रोज़ अमेरिका, आयरलैंड और स्पेन के फनकारों ने एक स्टेज पर आकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। राहील बेग की रिपोर्ट। खेल खेल में जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ रहा है, ड्रामे में एक शौहर, साबिक अदाकारा, शरारती नौजवान लड़की और एक कारपेंटर को 6 हफ्तों के लिए अदाकारी के कोर्स में शामिल होते दिखाया जा सकता है। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपने उरूज पर है। राहील बेग की रिपोर्ट। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के रंग आलमी सकाफती मेले का आज 15वां रोज़ है। थिएटर प्ले तालीम बालगा एक मरतबा फिर पेश किया जाएगा। थिएटर ड्रामा रात 8 बजे ऑडिटोरियम 1 में देखा जा सकेगा। फेस्टिवल पूरी आबोताब के साथ 2 नवंबर तक जारी रहेगा। सैयद ज़ुबैर राशिद से मज़ीद जान लेते हैं, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 15वां रोज़ है और आज भी मारूफ जो थिएटर है तालीम बालगान आज दोबारा नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा, जबकि 2 वर्कशॉप्स जो हैं वो भी आज के शेड्यूल में जारी हैं, शामिल हैं। इस वक्त मेरे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं जो कि आर्ट्स काउंसिल के शॉर्ट कोर्स के स्टूडेंट हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइए, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल एज ए स्टूडेंट इस फेस्टिवल को किस तरह एंजॉय करती हैं? मैं एंजॉय इस तरह से करती हूँ कि जो टिकट प्राइसेस है वो बहुत रीज़नेबल है, कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इजी है कि हम सारे उस फेस्टिवल्स को, पूरा फेस्टिवल हम एंजॉय कर सकें। दूसरा ये कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, हमारे लिए अननोन है, लेकिन जब हम जान रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें दूसरों के कल्चर के बारे में पता चल रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि जो बाहर के आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पे हमारे कल्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। लाइक लास्ट फंक्शन में सिर्फ पाकिस्तानी चीज़ें होती हैं और वो उनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं जब बाहर के आर्टिस्ट होते हैं। तो अच्छा लगता है जब अपने कंट्री बाहर जाती है, सपोर्ट होता है, बाहर कंट्रीज से भी पसंद करते हैं।
पसंद करते हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भी बहुत सारे फनकार जो हैं वो मौजूद हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं। तो जैसे कि इनका कहना था कि यहाँ जो भी फनकार बाहर से यहाँ पर आए हैं तो यकीनन यहाँ से कुछ ना कुछ जो है यादें ही सही वो बाहर ममालिक लेकर जाएंगे और पाकिस्तान की एक अच्छी सॉफ्ट इमेज जो है बाहर ममालिक में उसकी अक्कासी की जाएगी। ताहम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपने आबोताब से जारी है और ये जो फेस्टिवल है 2 नवंबर तक इसी तरीके से जारी वसारी रहेगा। जी, कमिश्नर कराची ने बीनाई से महरूम अफराद को खराज तहसीन पेश किया है। 15 अक्टूबर को नाबीना अफराद के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का फैसला कर लिया। कमिश्नर कराची 11 और कराची जिमखाना के दरमियान नुमाइशी मैच खेला जाएगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। बिनाई से महरूम अफराद के आलमी दिन पर कमिश्नर कराची का एहसान इक़दाम। 15 अक्टूबर को नाबीना अफराद के लिए स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक्किद करने का ऐलान। स्पोर्ट्स डायरेक्टर कमिश्नर कराची गुलाम मोहम्मद खान का कहना है कि कमिश्नर खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रहे हैं। नाबीना अफराद के आलमी दिन पर कमिश्नर कराची 11 और कराची जिमखाना के दरमियान नुमाइशी मैच खेला जाएगा। 15 अक्टूबर को ये जो आलमी दिन बिनाई से महरूम अफराद के लिए मनाया जा रहा है, उसमें उन्होंने कराची जिमखाना पे बिनाई वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से और कराची जिमखाना के इश्तराक से एक क्रिकेट का मैच रखा है जो नाबीना अफराद के दरमियान खेला जाएगा और उसको कमिश्नर कराची जनाब सैयद हसन नकवी साहब स्पॉन्सर फरमाएंगे और उसमें कराची के टॉप नाबीना क्रिकेटर जो हैं वो शिरकत करेंगे। सेक्रेटरी कराची शूटिंग बॉल एसोसिएशन इजाज़ अहमद बोले कि स्पोर्ट फेस्टिवल के इनकाद से नाबीना अफराद की हौसला अफजाई होगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सरपरस्ती जो नाबीना का आलमी दिन मनाया जा रहा है उसके हवाले से स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनकाद ख़ासकर कराची में एक बहुत बड़ा कदम है जिससे नाबीना अफराद की हौसला अफजाई होगी और खेलों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा पूरे कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में, और इससे कराची का इमेज बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। इस दिन को मनाने का आगाज़ 1930 में फ्रांस के शहर पेरिस से हुआ, जबकि पाकिस्तान में ये दिन पहली बार 15 अक्टूबर 1972 में मनाया गया। ये दिन मनाने का मकसद नाबीना अफराद को दरपेश मसाइल और मुश्किलात से मुताल्लिक माशरे को आगाह करना है। कैमरामैन राना जानजिब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जामे कराची में आलमी यौम क़ल्ब की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। माहिर अमराज़ क़ल्ब ने शुरका को दिल की बीमारी के हवाले से आगाही दी। आयमा खान की रिपोर्ट। दिल की सेहत का राज, सादा तर्ज जिंदगी। माहिरीन ने अमराज क़ल्ब से बचाव का सादा हल बता दिया। जामे कराची के चाइनीज टीचर मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल में आलमी यौम क़ल्ब की मुनासबत से तकरीब सजी। माहिरीन ने शुरका को दिल की बीमारी से मुतालिक आगाही दी। मेहमान खुसूसी शेख अल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा कि सादा तर्ज जिंदगी दिल की बीमारियों से महफूज रहने का वाहिद तरीका है। हमें अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना चाहिए। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए। हर दिन आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। माहिर अमराज़ क़ल्ब डॉक्टर अकमल वहीद बोले कि हर साल इस दिन की मुनासबत से जामे में तकरीब मुनक्किद करते हैं ताकि लोगों को दिल की बीमारियों से बचने के लिए आगाही दे सकें। देखिए, आज हमने जो वर्ल्ड हार्ट डे है उस रेफरेंस से सेमिनार रखा था। नॉर्मली ये 30 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसका मकसद ये होता है कि लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में आगाही दी जाए और दिल की बीमारियों से बचने के तरीके बताए जाएं। माहिरीन ने पैदल चलने और वर्जिश को दिल की बीमारियों से बचने के लिए आसान नुस्खा करार दिया। कैमरामैन शासिब के साथ आयमा खान, सिटी 21। NA 234 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुतहिदा रहनुमा मोइन आमिर के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। फ़हीम खान की इलेक्शन पिटिशन काबिल समाअत करार दे दी गई। NA 234 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुतहिदा रहनुमा मोइन आमिर के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। फ़हीम खान की इलेक्शन पिटिशन काबिल समाअत करार। ज़िमनी इंतखाबात की खाली नशस्तों के लिए रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज़। गुज़श्ता रोज़ 10 नशस्तों के लिए 3 ही उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। ज़िमनी इंतखाबात के खाली नशस्तों के लिए रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा कराने का दूसरा रोज़ है। अक्सा शाहिद से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जैसा कि
सिंध के 26 खाली जिला में जो है वो इंतखाबात का सिलसिला जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बल्दियाती खाली नशिस्तों पर जो वो इंतखाबात जो है वो शहर कराची में जो है वो मैदान सजने को उनका तैयार है। 10 मजमूई तौर पर जो है वो कराची में जो है वो इंतखाबात होंगे 10 नशिस्तों पर। और इसमें जो है वो कराची के अगर अजला की बात करें तो 6 अजला जो है वो कराची के इसमें शामिल है, इसमें कि कराची वेस्ट, साउथ, सेंट्रल, कोरंगी और मलिर के जो डिस्ट्रिक्ट है इनमें जो वो इंतखाबात जो है वो होंगे। मजमूई तौर पर 10 नशिस्तों में 4 चेयरमैन, 4 जनरल वार्ड और 2 वाइस चेयरमैन की नशिस्त में जो है वो इंतखाबात का सिलसिला जो है वो 14 नवंबर को जो वो देखा जाएगा। अब तक मजमूई तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो यहाँ पर जो कागजात नामजदगी का सिलसिला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब तक जो है वो 4 कागजात नामजदगी उम्मीदवार यहाँ पर जमा करवाने आ चुके हैं, जिसमें 2 पीपल्स पार्टी के हैं, 1 जमात की तरफ से है और 1 आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो जो इलेक्शन में जो है वो खड़े होने की जो है वो ख्वाहिशमंद है। और यहाँ पे आर ओ से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अब तक जो है वो 20 के करीब फॉर्म जो है वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अब तक जो जमा कराने का सिलसिला है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। ये सिलसिला कल तक जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। उम्मीदवार जो है वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आर ओ सलान के पास जाकर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। मलिर, वेस्ट, साउथ और सेंट्रल में जो ये सिलसिला जो है वो कल शाम तक जारी रहेगा। उसके बाद 14 से 16 नवंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का सिलसिला जो है वो देखा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।